Yes, good afternoon, students. Yes, good afternoon, children. Yes, am Good I audible? morning, sir. Good morning. Good afternoon. Yes, good afternoon, Mita. Good afternoon, sir. Very good afternoon, Pari. Shavya. Yes, Yeah, Riddhima is also there now. Waiting for a couple of more minutes, and then I'll start my okay, sir. agenda for the day. It's quite raining heavily outside. Yes, sir. Uh, so I'm sharing my screen meanwhile so that you all can see what I'm sharing. If my screen is visible to you, please let me know. Yes, sir. Busy. Okay, okay, then fine. So I'll discuss about because today is an online class, so this is a good sign to discuss the problem related to Python programming because I'm already sharing my screen and I'll clear all your doubts if you have any.
otherwise I'll teach from my side. So first of all, I'm asking, like, is there any program which you are finding difficult, which I have shared before the summer vacation? Any program, just tell me the program number and we will discuss that program here. Like 20 programs I have given to you. So let me check. Please check it. Whoever is here, please check your coding notebook, or just see that program list. I'll share. Let me see. I can share that with you all. Sequential program I was discussing. So I think it's in D drive. Artificial intelligence. Sir, Yes, beta. so I was having problem in 19th one question. 19th one. Fine. Yes, sir. Okay, let me open that program list. 11th course. Practical program list. Selection. This is program list number 2. I'm just checking. Please let me know whether that is the file which I have shared, or So it was sequential program. sequential. Na? Yes, I think so. Yes. No, that's the No, selection. sir, not this. That is selection 1. This I'll share later on. Selection sequential PDF, and in that list number 1. I think so. Yeah, I think that is the program list now. Yes, sir. Yes, sir, this one. Okay. Very good. Let me see if I can increase the font size little bit more. I think it's okay. Program number 19. 19. Quickly, we are moving to the program number 19. Yeah, what is that? Write a program in Python to ask the user to enter the marks of 5 subjects out of 100 each. Calculate the total percentage and average of all 5 subject marks. Display the output on the screen. Okay. So in that question, just try to imagine that you are asking 5 subject marks, one of your friend. So your friend has given you all 5 subject marks specifically out of 100, and what you need to do, you need to tell her that this is your grand total, and this is your percentage, and this is your average of all marks out of 5. Okay, so for that, I think you know that this is interactive mode screen. We know that this screen we can use just like as a calculator. If you want to perform any calculation, you can do that right away. So if we will solve this expression, we will get 12.2640, and 264. So you can see that it's a big number which is coming as an output. So if you want to minimize that number, we can do one thing. We can use round function for that. We can simply write round, and in between the round, we just want to type the same expression, okay, which we have given here. So I'm just quickly copying this statement, this expression, and I'm pasting inside the round function. And then after putting placing that number, I'm putting one comma sign, and जो round off करना है, I just want to do till second place. सेकंड प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है, दैट्स व्हाई आई एम टाइपिंग हियर 2. अगर मैं थर्ड प्लेस तक करना चाहता तो आई विल टाइप 3. अगर फोर्थ प्लेस तक करना है तो आई विल टाइप 4. ओके, चलिए फोर्थ प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करते हैं. तो डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस कहां तक आ रहा है? 0, 1, 2, 3 एंड 4. इस प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना था. तो लेट अस सी व्हाट आंसर विल कम हियर. या 26. तो कहां तक आया? 264, और 0 है लास्ट में, इसीलिए वो स्किप कर दिया गया. अगर वो कोई अदर देन 0 नंबर होता तो वो नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता. लेट अस सी इफ आई एम कॉपिंग द सेम स्टेटमेंट हियर, और मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ. मैं इसको 5 प्लेस तक
5 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो 5 प्लेस पे देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पे 2 आ रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। यस, तो इसको 3 क्यों कर दिया, क्योंकि ये 26 हो रहा था, है ना, तो 25 से ऊपर कोई भी नंबर जो 5 डिजिट होती है, अगर उससे कोई बड़ा नंबर है तो ये क्या करता है, उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो देखा जाए तो ये कितना हो गया, 26420 3। खैर, तो अभी मुझे क्या करना है, फिलहाल मुझे तो प्रोग्राम बनाना है, तो मैं स्क्रिप्ट मोड पे फौरन आ जा रहा हूँ, Ctrl+N, तो Ctrl+N तो आ गया, एक नई स्क्रीन भी हमारे सामने आ गई, और दिस स्क्रीन इज इन स्क्रिप्ट मोड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज स्क्रिप्ट मोड स्क्रीन, ये स्क्रिप्ट मोड स्क्रीन है। अब इसमें करना क्या है, प्रोग्राम बनाना है, तो क्विकली क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल, और क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, और क्या निकालना है, इसका एवरेज भी निकालना था, AVERAGE, इतनी सारी चीजें निकालनी है मुझे, ठीक है, और वो भी मुझे 5 सब्जेक्ट मार्क्स का नंबर पूछना है आउट ऑफ 100 ईच। तो एक मैसेज दे रहा हूँ यूजर को, सबसे पहले कि यूजर एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, यूजर, या जो भी इसका नाम आप पूछना चाहते हो, पहले नाम पूछ लो उसका, तो यूजर प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100 ईच, 100 ईच में इसके मार्क्स इनपुट करिए, तो यूजर विल रीड दिस मैसेज और यूजर विल कम टू नो दैट यस आउट ऑफ 100 वी नीड टू एंटर द मार्क्स। ठीक है बेटा, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yes, beta. So now one message already I have given here that user whatever marks you are entering enter out of 100 marks, ठीक है, 100 में से मार्क्स डालना आपने। तो चलिए इससे मार्क्स पूछते हैं, सबसे पहले इससे पूछते हैं मैथ्स के नंबर, फिर मैं इसके बाद पूछूंगा साइंस का नंबर, पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं, इसके बाद कंप्यूटर का एक नंबर ले लेते हैं, कंप्यूटर CUMP कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट ले लेते हैं लाइक सोशल्स, सोशल एक नंबर ले लिया, एंड एक ले लेते हैं इंग्लिश, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए Yes. मार्क्स लेते हैं यूजर से, तो यूजर से जो मार्क्स पूछे जाएंगे वो आप पॉइंट में चाहते हैं या इंटीजर में चाहते हैं, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्क्स तो पॉइंट में भी हो Same सकता है, teaser. हाँ नहीं बेटा, में भी हो Okay. सकता है, किसी का आता है 66.5 मार्क्स, तो 66.5 ही लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे और यूजर का 66.5 मार्क्स होगा ना, तो सिर्फ 66 काउंट किया जाएगा, 0.5 को इग्नोर कर देगा, ये उसका नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको फ्लोट में रख लेता हूँ, फ्लोट, ठीक है। मार्क्स तो हो सकता है पॉइंट में, उससे उसका नुकसान हो जाएगा नहीं तो, और यहाँ पे लिखा जाएगा इनपुट। तो सर वो राउंड ऑफ नहीं होगा, मतलब 66 पॉइंट अगर 5 है तो वो राउंड ऑफ करके 66। ये राउंड ऑफ तब तक नहीं होगा जब तक हम राउंड ऑफ का फंक्शन नहीं लगाएंगे, जब हम राउंड ऑफ का फंक्शन लगाएंगे तो करेगा, और अभी तो हमने लगाया ही नहीं है ना, तो इसलिए उसका लॉस हो जाएगा वहां पे, ओके, तो मतलब 0.5, हाँ लॉस हो जाएगा। ओके। लॉस हो जाएगा उसका, हो सकता है उसकी पॉइंट, अगर उसके पांचों सब्जेक्ट में पॉइंट पे नंबर है, तो इस हिसाब से तो 2.5 मार्क्स का लॉस हो जाएगा उसे, और 2.5 का मतलब एक अच्छी खासी हो सकता है, एक डिजिट ही उसकी परसेंटेज की बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए मैंने यस सर। इंटेंशनली इसको फ्लोट में रख दिया। एक सेकेंड कहाँ गया, या ठीक है, तो मैं इसको उसमें रख दिया मैंने आपको पॉइंट में। तो चलिए एक मैसेज दे दे रहा हूं यूजर को, यूजर एंटर द मार्क्स
ऑफ मैथमेटिक्स। यूजर एंड मैथमेटिक्स का मार्क्स एंटर करिए। इसी तरीके से साइंस का नंबर ले लेते हैं, तो लिखेंगे फ्लोट, क्योंकि यूजर से मांगा जा रहा है इसीलिए लिखा जाएगा इनपुट। फिर डबल कोट्स में एक मैसेज दे देते हैं एंटर। आप मैसेज चाहो तो चेंज कर दो, मैसेज चाहो तो वैसा ही रखो जैसा ऊपर दिया है। यूजर एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस। आप साइंस का नंबर दो यूजर मुझे, तो यूजर ने आपको साइंस का नंबर दे दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर का नंबर ले लेते हैं, इनपुट यूजर एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा आप देखिए डबल कोट्स में मैं सब्जेक्ट के नाम पूरे पूरे लिख रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं डबल कोट्स में, तो वो तो चेक ही नहीं करता है, वो तो उसको सीधे सीधे डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे जैसा लिखोगे। तो यूजर एंटर द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस। तो यूजर ने आपको सोशल साइंस का नंबर दे दिया, ठीक है। और लास्ट में किसका नंबर लेना है, इंग्लिश का, तो लिखेंगे फ्लोर। आप बार बार लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ज्यादा बार कमांड याद हो जाती है। कोई भी चीज बार बार लिखेंगे तो डेफिनेटली वो हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आने लगती है। एंटर द मार्क्स ऑफ ENGLISH, इंग्लिश का नंबर भी दे दो मुझे, ठीक है। तो उसने मुझे इंग्लिश का भी नंबर दे दिया, तो सही कर लूं इसे मैं, यस, इंग्लिश का भी नंबर मुझे दे दिया। तो देखिए अगर अभी इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं कैसा आएगा मेरा क्या नाम है, आउटपुट। तो पहले इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, कंट्रोल S, या फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हो यहाँ से, या तो शॉर्टकट की प्रेस करो, देखो शॉर्टकट की भी लिखी हुई है यहाँ पे, या तो कंट्रोल S प्रेस कर दो या फिर कंट्रोल+Shift+S, और आपका ये प्रोग्राम सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा। ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ कि एक फोल्डर जरूर बनाइए, किसी भी ड्राइव में बनाइए। अगर सी के अलावा कोई ड्राइव है तो पहले वहां बनाओ, नहीं है अगर तो मजबूरी में सी में बनाइएगा हमेशा। तो चलिए मेरे पास तो दो दो ड्राइव और भी हैं, तो मैं ई ड्राइव में बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अपने नाम का फोल्डर बना देता हूँ, आप अपने नाम का बना दीजिएगा, हिमांशु नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, मैं 9C में पढ़ता हूँ, चलिए इस तरीके से। तो आप जब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आप इस पे एक बार और एंटर प्रेस करिए, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स नाम से इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम एंटर प्रेस किया, मार्क्स। अब आप टाइटल बार पे देखोगे स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ पे देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, marks.py, और ये कहाँ बना हुआ है ये भी बता रहा है कि ई ड्राइव में हिमांशु 9C नाम का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर marks.py पाइथन की एक फाइल पड़ी हुई है। तो इसने इतना काम तो कर दिया। तो जब तक सेव नहीं करोगे प्रोग्राम चलता नहीं है। अब रन पे क्लिक किया और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया, यहाँ अपनी कीबोर्ड से F5 का की प्रेस कर दो, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। चलिए क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये मैसेज आ गया। सबसे पहले क्या मैसेज आया, यूजर प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100 ईच। तो ये तो मुझे पता लग गया कि 100 में से नंबर देने हैं, वरना मुझे अपने हर मैसेज में लिखना पड़ता एंटर द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100, एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर आउट ऑफ 100, इस तरीके से। तो मैंने एक ही बार में काम खत्म कर लिया अपना। तो मार्क्स डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं सपोज इसका 78। देखिए दूसरा मैसेज आ गया, एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस, इसमें डाल देते हैं 87। कंप्यूटर के मार्क्स में 99 डाल दिया, सोशल्स के मार्क्स में 89 डाल दिया, इंग्लिश के मार्क्स में भी 88 डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा देखिए क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं था उसके आगे। जब आपने प्रोग्राम बनाया था तो उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं था हमने, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो चलिए इसका टोटल निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे टोटल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए। आई थिंक प्रिंट लिखना है एंड उसके अंदर
हाँ प्रिंट देखिए टोटल टोटल। निकालना, देखिए टोटल निकालना है, इसका मतलब ही यही हुआ कि जो जो यूजर ने नंबर पाए हैं आउट ऑफ 100 उन सबको मुझे प्लस करना है, ये ना मतलब हुआ। यस। हाँ तो चलिए प्लस कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल के नाम का, ताकि मुझे याद रहेगा कि टोटल कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के नंबर जो वेरिएबल है हमारे उनको प्लस करेंगे, लिखेंगे मैथ्स, मैथ्स लिखा है तो मैथ्स ही लिखा जाएगा प्लस साइंस। अच्छा ये जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग तो आपको लिखनी लिखनी है वैसे ही, प्लस आपको केस भी वही लिखना है। अगर आपने स्मॉल में लिया है तो सब आप स्मॉल में ही लिखेंगे, कैपिटल करेंगे तो एरर आएगा। कंप्यूटर, सर जस्ट लाइक सब्जेक्ट के बाद एक स्पेस भी लेनी है। देखिए मैंने क्यों लिया है यहाँ पे स्पेस, थोड़ा क्लैरिटी दिखती है बस इस वजह से, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ओके। ना? कोई दिक्कत नहीं है। बट रिजल्ट तो वही आएगा। हाँ आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक मैसेज दिया था अपना मैथमेटिक्स, उसके बाद भी मैंने एक स्पेस दिया है, फिर मैंने दो साइन बना दिया, थोड़ा डेकोरेटिव कर दिया, फिर मैंने उसके बाद फिर एक स्पेस दिया है। तो जितना गैप के साथ नंबर आता है ना वो विजिबल ज्यादा अच्छा होता है पढ़ने में, और यस सर। आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे गैप देना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इक्वल टू साइंस के बाद फिर दे दिया, तो ये पता लग रहा है दूर से मुझे कि हाँ ये नंबर मैं जोड़ रहा हूँ। कंप्यूटर के बाद में मैंने लिया है सोशल प्लस इंग्लिश। देखिए एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स लिए हुए थे उसी ऑर्डर में इनको प्लस करना है, ये जरूरी नहीं है। आप चाहते तो पहले इंग्लिश भी लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि इंग्लिश का नंबर मिल चुका है आपको, है ना? तो आप 24 में 26 को प्लस करो या 26 में 24 को प्लस करो, एडिशन तो उतना ही आना है ना। तो इसलिए इसका यस सर। इसलिए इसका ऑर्डर कुछ भी रखा जा सकता है। तो चलिए टोटल तो मुझे पता लग गया, यानी एक आंसर तो मैंने निकाल लिया इसका टोटल, है ना? अब इसकी परसेंटेज की बारी आई, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंटेज पीईआर नाम का, आप चाहो तो पूरा लिख दो परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है जितना नंबर आपने गेन किया है, तो वो तो पड़ा हुआ है टोटल में, इसलिए लिखा जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय कितना ग्रैंड टोटल है, मतलब कितना मैक्सिमम टोटल है आपके क्वेश्चन पेपर का। एक पेपर 100 नंबर का है तो 500। 500 का हुआ, इसलिए लिखा जाएगा 500, और फाइनली उसकी मल्टीप्लाई की जाती है 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज भी निकल गया यहाँ पे, और क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एक वेरिएबल लिख दिया एवीजी। एवीजी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज के लिए जो आपका टोटल है उसको डिवाइड देना पड़ेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड दिया जाएगा, अगर 6 होता तो 6 से देते। तो चलिए ये एवरेज भी निकल गया यहाँ पे। अब बात रह गई है सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट करने की, तो करते हैं, लिखेंगे प्रिंट। सबसे पहले क्या प्रिंट करा रहे हैं, टोटल। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूजर योर ग्रैंड टोटल इज, कॉमा, और वो वेरिएबल का नाम टोटल। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, अब इसकी परसेंटेज प्रिंट करनी है, तो लिखेंगे प्रिंट यूजर, आप चाहे यूजर लगाओ या ना लगाओ आपकी इच्छा है, योर परसेंटेज इज, कॉमा, और वेरिएबल का नाम पीईआर। इसी तरीके से एवरेज निकाला जाएगा, तो फिर लिख रहे हैं प्रिंट यूजर एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क इज एवीजी, एवरेज भी निकाल दिया यहाँ पे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे तीनों रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा दिया। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, है ना? तो ऑलरेडी मैंने इसको एक नाम से सेव किया हुआ है, सिंपली मुझे F5 ही, सॉरी कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा चेंजेस के लिए। आप यहाँ फाइल में जाके भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया, फाइल में जाइए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए। देखिए जब भी आपको एक नया नाम देना होता है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे या सेव एज पे क्लिक करें, बट आपको उसी फाइल में बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, वो उसी फाइल के अंदर सेव करता है, दूसरे नाम से नहीं बनाएगा, है ना? चलिए अब इसको रन कराते हैं F5।
तो पुराना स्क्रीन जरा बंद कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आउटपुट अब थोड़ा अच्छे से आने वाला है। F5. Now see, user please enter your marks out of 100 each. Okay, कॉमन मैसेज मिल चुका है कि सारे सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के हैं, उसी में से नंबर देने हैं आपको। तो फर्स्ट द मैसेज इज यूजर एंटर द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, लेट इट बी 98. यूजर एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस, लेट इट बी 86. कंप्यूटर्स 100, ये 100 ही रहेगा, आप याद रखना। और सोशल साइंस लेट इट बी 89, ठीक है। इंग्लिश रह जाता है, इंग्लिश को दे देते हैं 90 मार्क्स। फाइन, लेट अस प्रेस एंटर की। अब इसमें मेरा टोटल भी पता लगेगा, एवरेज भी पता लगेगा और परसेंटेज भी पता लगेगा। यस यूजर, योर ग्रैंड टोटल इज 463.0। अब आपने देखा ये 0.0 क्यों लग के आया, क्योंकि हमने जो वैल्यू यूजर से मांगी थी वो किस टाइप की थी, वो फ्लोट में थी। तो हम भले ही 98 डाल रहे हैं, लेकिन ये 98.0 रखेगा। आप चाहते तो सारी वैल्यू आप पॉइंट में भी दे सकते थे, क्योंकि फ्लोट लिया ही था हमने। अब इसकी परसेंटेज क्या बनी, 92.60000001। हाँ, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ये अजीब लग रहा है, इसको 2 प्लेस तक परसेंटेज को राउंड ऑफ करेंगे। और एवरेज तो आ ही रहा है 92.6, है ना। तो चलिए इसको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, किसको, परसेंटेज को। तो इसको करने के लिए जहां पे भी आप परसेंटेज प्रिंट करा रहे हो ना, वहीं कर लेते हैं। तो उसी को मैंने राउंड के अंदर रख दिया, ROUND। और कितनी प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 2 प्लेस तक करना है, तो इसलिए 2 लगा दिया और एक पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी इसकी परसेंटेज की। और अगर आप चाहते हो परसेंट का साइन भी बाद में लग के आए, तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में परसेंट का साइन लगा दो, वो भी वो वैसा ही डिस्प्ले कर देगा जैसा आप लिखते हो डबल कोट्स में, है ना। तो चलिए इसको रन कराते हैं। तो सेम नंबर डाल देते हैं जो ऊपर डाले थे, है ना। तो लिखते हैं 98, 86, 100, 89, 90। हाँ, तो देखिए आपके पास कितना आया, वो राउंड ऑफ हुआ है 2 प्लेस तक, लेकिन जो सेकंड डिजिट था वो 0 था, इसलिए 92.6 ही रखा इसने। और एवरेज भी उतना ही है, एवरेज भी उतना ही निकला, ठीक है। तो इत्तेफाक वाली बात है, क्योंकि एवरेज को हमने क्या किया है, परसेंटेज वाला भी फॉर्मूला लगा, परसेंटेज और एवरेज के फॉर्मूले में यहाँ कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दिखाता हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा था, 500 अपॉन 100 अपॉन 500, तो 2 जीरो कट गए, तो बचा नीचे 5 ही, है ना। और यह भी वही चीज है, तो लगभग सेम फॉर्मूले थे ये, इसीलिए उनके रिजल्ट्स भी सेम दिखे मुझे। तो ये आपका प्रोग्राम था जो आप पूछना चाह रहे थे मुझसे। एक काम कर सकते ओके हैं, सर। एक काम और कर सकते हैं, इसमें जब हम पहला रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं ना, तो मैंने इसमें डबल कोट्स के अंदर मैसेज से पहले बैकवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश है, पीछे की ओर झुका हुआ है, और एन टाइप कर दिया, ठीक न्यू है, लाइन। न्यू लाइन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जब आउटपुट आएगा ना, तो ये जैसे आउटपुट में कोई गैप नहीं आ रही है यहाँ पे, इस लाइन में और इस लाइन में, तो वहां पे गैप भी आएगा आपका ओके सर। ना। एक सेकंड देखते हैं, हाँ, एक लाइन का गैप आ गया, है ना। और इसी प्रोग्राम को आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, इसी को और आगे देख लीजिए कैसे बना रहे हैं हम। ये आने वाले टाइम में हमें कराना ही है क्लास में। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैसेज देने से पहले मैंने एक और मैसेज दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखिएगा इंटरेस्टिंग है। प्रिंट यूजर प्रेस 1 फॉर फाइंडिंग टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स। 1 प्रेस करिए किसके लिए, सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल पता करने के लिए। सेकंड, प्रिंट यूजर प्रेस 2 फॉर फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स। तो एक मैसेज ये दे दिया मैंने, एक और दे देते हैं मैसेज एवरेज के लिए। यूजर प्रेस 2 फॉर फाइंडिंग एवरेज, जस्ट अ मिनट, एवरेज
of 5 numbers, 5 subject marks। ठीक है, एक मैसेज ये हो गया मेरा। तो यूजर ने अकॉर्डिंगली एक नंबर डिसाइड किया होगा कि 1 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है। तो जो भी नंबर वो प्रेस करेगा मैं उसको चॉइस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लेगा। इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। तो जब ये मैसेज जाएगा यूजर के सामने तो यूजर डेफिनेटली एक नंबर प्रेस करेगा ही करेगा एंटर योर चॉइस के आगे। तो वो नंबर किस में चला जाएगा, चॉइस नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो चलिए इतना करने के बाद फटाक से उसका मार्क्स पूछ लिया। मार्क्स पूछने के बाद में यहां पे लगाएंगे कंडीशन। देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं इफ चॉइस डबल इक्वल टू 1। डबल इक्वल टू का मतलब है, ये डबल इक्वल टू को कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं यहां लिख रहा हूं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये चेक करता है कि डबल इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, अगर उसने 1 डाली है, क्या वो 1 के इक्वल है? हाँ, अगर है तो क्या होगा, टोटल निकालेगा। तो आपको क्या करना है, टोटल नाम का जो लाइन है वो आप यहां से लिखेंगे। देखिए ये जो गैप आया है ना, ये अपने आप आया है। जब आप कोलन लगाएंगे ना लास्ट में, ये वाला साइन, फिर आप एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद से, तो वो ऑटोमेटिक एक गैप के साथ आता है। तो उसी गैप के साथ आपको वो लाइन लिखनी है फॉर्मूले की। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसने 2 डाला होगा तो क्या होगा देखते हैं। फिर आपको शुरू से ही लिखना है इफ चॉइस डबल इक्वल टू 2। अगर चॉइस में 2 पड़ा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। और अगर चॉइस में 3 पड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो दोनों केस में जो भी फॉर्मूला आएगा उसकी वैल्यू भी तो प्रिंट करेगा ना साथ में। भाई अगर फॉर्मूला लगाया तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला और उसका जो रिजल्ट प्रिंट कराने का स्टेटमेंट है वो आपको इसी के साथ लिखना पड़ेगा, सेम गैप से। ये थोड़ा सा, ओके सर। हाँ, क्योंकि वो कंडीशन है। कंडीशन ये कह रही है कि अगर चॉइस में 2 पड़ गया है तो उसका परसेंटेज निकालेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा। और यहाँ पे भी वही, सॉरी पी आर, यहाँ पे भी वही चीज है, इसको भी गैप से लिखना पड़ेगा। अब ये बन गया प्रोग्राम। और एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए पहले ये करके दिखाता हूँ फिर लिखूंगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। पुराना वाला जो स्क्रीन है आउटपुट का, उसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा एक ही है, फाइन, क्लोज है ऑलरेडी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैसेज क्या आया, यूजर प्लीज 1 फॉर फाइंडिंग टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स। 2 परसेंटेज के लिए प्रेस करो। अच्छा इसमें भी 2 लिख दिया है मैंने साथ में, इसको 3 करना चाहिए था मुझे, है ना। तो इसको कर देते हैं, पहले इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि प्रोग्राम ठीक होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे था मैसेज, ऊपर है ये। तो यहाँ पे दोनों जगह 2 2 हो गया था, इस वजह से ही वहां पे 2 प्रेस कर रहा था ये, ऊपर वाली लाइन में भी और इसमें भी। इसको कर देते हैं 3। अब चलाते हैं। तो देखिए मैसेज आया सबसे पहले, यूजर 1 2 3 प्रेस करो इन इन चीजों के लिए। तो चॉइस पूछ रहा है, आप बताओ आप क्या निकालना चाहते हो। सर थर्ड, थर्ड वाला। चलिए एवरेज। 3 प्रेस किया तो ये पूछेगा यूजर प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, क्योंकि एवरेज तो उसी का निकालना है, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स का। तो चलिए मार्क्स डाल दिए 45 54 34 45 44। एंटर प्रेस करते ही अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या कह रहा है, नेम टोटल इज नॉट डिफाइंड। यार टोटल यहाँ पे आपने क्या लिया है। देखिए एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे हमने जितने भी इफ लगाए हैं वो लिखे तो एक ही प्रोग्राम में है, बट देखा जाए ये 3 अलग अलग प्रोग्राम है। तो चॉइस नाम के वेरिएबल में हमने एक वेरिएबल यूज करा है चॉइस 3 के केस में टोटल। तो वो टोटल आपको यहीं पे लिखना चाहिएगा, तभी वो टोटल की वैल्यू लेगा। वो टोटल की वैल्यू चॉइस 1 के केस में से नहीं उठाएगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये टोटल वाली जो लाइन है, क्योंकि टोटल तो तीनों केस में जरूरत पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि परसेंटेज के फॉर्मूले में भी टोटल लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखी जाएगी, वो ऊपर से नहीं लेगा।
वो कहेगा कि मैं यहीं से लूंगा जहां से फॉर्मूला लगा हुआ है, उसी जगह से, यानी वो इतनी सी जगह में से ही उठाएगा, क्योंकि 3 लाइनें लिखी है मैंने, ऊपर से उसका कोई मतलब ही नहीं है, ना 1 से मतलब है ना 2 से मतलब है। अब सही है, तो एक बार क्लोज कर देता हूँ इसे, फिर ये आपकी क्लास भी ओवर होने वाली होगी। चलिए, तो 3 प्रेस किया उसने, कह रहे यूजर प्लीज एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100 ईच, मैथ्स के नंबर फॉर 54 56 67 76 45, और इसमें दे देते हैं 66 कर देते हैं। चलिए, तो एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए यूजर एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट इज 59.4, और आप अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आपको 2 प्रेस करना चाहिए था, 2। तो कह रहे हैं मार्क्स तब बताइए, दे देते हैं 66 55 44 77 88, तो आपका परसेंटेज बन रहा है 66.0%, पूरा पूरा 66% बन रहा है। और अगर आपको सिर्फ टोटल चाहिए था तो आपको 1 प्रेस करना चाहिए था, तो आपके बाद 1 प्रेस कर देते हैं, तो मार्क्स देने पर 45 56 67 78 89, तो टोटल आ गया 335.0, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कि अगर यूजर ने जो चॉइस डाली है, जो उसे कहा गया है ऊपर यहाँ पे, अगर उस चॉइस में 1 पड़ा है तो वो टोटल निकाल लेगा सारे सब्जेक्ट्स का और उसकी प्रिंट करा देगा। अगर उसमें 2 पड़ा है तो फिर से टोटल निकालेगा, टोटल तो निकालना पड़ेगा, वो ये प्रोग्राम ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन को सेपरेट मानता है अपने आप से, तो इसलिए वहां की चीज ले नहीं सकता, तो आपको वो काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। टोटल निकाला और उसकी परसेंटेज निकाल दी और प्रिंट करा दी, अगर 3 डाला है फिर से टोटल निकाला, एवरेज निकालना और उसकी रिजल्ट प्रिंट करा दिया। आप नीचे एक कंडीशन और दे सकते थे, इफ चॉइस इज लेस देन 1 एंड चॉइस बड़ा है 3 से, तो एक मैसेज दे दे रहा हूं यहां पे, यूजर डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, एंटर द करेक्ट चॉइस, सही चॉइस एंटर करो, स्मार्ट मत बनो। 3 मतलब क्या है कि उसको वैल्यूज कितनी दी गई थी, 1 2 3, इसी में प्रेस करना था, लेकिन अगर उसकी चॉइस की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो गई, या फिर और आना चाहिए यहाँ पे, और का मतलब होता है या फिर चॉइस जो है उसकी 3 से बड़ी हो जाती है, मान लो वो 4 प्लस कर दे, तो उस केस में ये मैसेज आएगा। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, सेकंड वाली लाइन से पहले बैकवर्ड स्लैश एन लगा दिया, तो 2 लाइन में ये मैसेज आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार, तो कह रहे हैं चॉइस प्रेस करो, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, देखिए क्या मैसेज आया, ओ, तो ये काम मुझे देखना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि ये मार्क्स पूछ ले रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला जो पोर्शन है प्रोग्राम का, ये किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं था, है ना, इसी वजह से इसने यहाँ पे ये पूछा है हमसे। तो इसमें हम एक काम ये करेंगे, इसको कट करना पड़ेगा ऐसे केस में, ये लाइंस यहाँ से हटानी पड़ेंगी, क्योंकि कंडीशन के अंदर लेनी पड़ेंगी, ये मजबूरी हो गई मेरी अब, वरना वो गलत चॉइस के केस में भी, देखिए मैं आपको दिखा दूं मैंने किया क्या है, मैंने शॉर्टकट की यूज करी है, आपको किसी दिन लैब में बताएंगे क्या है ये शॉर्टकट की, जिससे ये काम बहुत जल्दी हो गया। यही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट किया, जो लाइंस शुरू से आ रही हैं उनको आगे बढ़ाना है, यस आगे बढ़ गई, और ये गैप खत्म कर दिया, ऐसी तीसरे वाले में भी कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट किया, जो लाइंस पीछे से हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बढ़ाया, एक शॉर्टकट की है, यस, तो आपने देखा ये सारी चीजें इसी के अंदर आ गई, है ना, कुछ भी यूजर से नहीं मांगा है। और ऐसे केस में ये वाली लाइन अब यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने इफ के अंदर ले ली है सारी। देखिए हो सकता है अभी नहीं समझ में आए कोई बात आपको, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो पूरा बताएंगे दोबारा से। और एक बार आप ओके चला सर। के एक बार आप चला के देखते हो, कुछ रॉन्ग चॉइस इनपुट करते हैं, आना स्क्रीन हटाई दो, चलिए चॉइस डालते हैं, अब क्यों डालें 6, तो देखिए क्या है, यूजर डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, एंटर द करेक्ट चॉइस, और अगर वो 1 से छोटा नंबर डाल देता है तो भी यही चीज थी, 1 से छोटा नंबर 0 होता है,